Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6, Subject English, Chapter 3, Lecture number 3. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, so take out a book and turn to page number 45. Okay students, so in the previous lecture we left our chapter over here, that is, then said the Qadi, leave the horse in my stable and return to this courtroom tomorrow morning. So here we dropped our previous lecture and have to start further from the next morning paragraph. So let us begin our lecture for today. The next morning the Caliph arrived at the courtroom early, for he was keen to hear how the Qadi would decide the case of the coin and that of the book. So here it is said that the next morning the Caliph arrived at the courtroom early, for as he was very much keen to know how the Qadi would make a decision for the coin case and that of the book. The next morning, अगली सुबह द कलीफ अराइव्ड पहुंचा एट द कोर्ट रूम अदालत में अर्ली जल्दी, फॉर ही वॉज वह था कीन उत्सुक, टू हियर सुनने के लिए, टू हियर यानी सुनना, हाउ कैसे, द कादी वुड डिसाइड कादी निर्णय लेगा, द केस उस केस का, ऑफ द कॉइन सिक्के का, एंड और दैट ऑफ द बुक और उस किताब का. As soon as the Qadi entered the room, he ordered the oil merchant and the potter to come before him. So यहाँ कहा गया है कि ओके, सो इन द प्रीवियस पैराग्राफ अगली सुबह खलीफ पहुंच जाता है जल्दी, क्योंकि उसे उत्सुकता होती है ये जानने की कि जो कादी है वो क्या निर्णय लेगा उस सिक्के का और उस बुक का. एज सून एज, नाउ दिस पैराग्राफ, एज सून एज जैसे ही द कादी एंटर्ड कादी प्रवेश करता है द रूम कमरे में, ही ऑर्डर्ड वह आदेश देता है, द ऑयल मर्चेंट तेल के व्यापारी को, एंड और द पॉटर सामान ढोने वाले आदमी को, टू कम बिफोर हिम आने के लिए, बिफोर हिम उसके सामने आने के लिए उन्हें आदेश देता है. फुल स्टॉप. नाउ द कादी एंटर्ड द रूम एंड ही ऑर्डर्ड द ऑयल मर्चेंट एंड द पॉटर टू कम बिफोर हिम. वो कादी जैसे ही उस कमरे में प्रवेश करता है कोर्ट रूम में, तो वो आदेश देता है तेल के व्यापारी और उस पॉटर को, उस सामान ढोने वाले आदमी को उसके सामने पेश होने के लिए. हैंडिंग द गोल्ड कॉइन टू द ऑयल मर्चेंट, ही सेड, here is your gold coin, take it, it is rightfully yours. Now the Qadi exclaims that, handing the gold coin to the oil merchant, he exclaims that this is your coin and take it rightfully as it is yours. Handling, पकड़ाते हुए, द गोल्ड कॉइन, हैंडलिंग का मतलब होता है किसी को पकड़ाना या सौंपना. द गोल्ड कॉइन सोने का सिक्का, टू द ऑयल मर्चेंट तेल के व्यापारी को, ही सेड वह कहता है, हियर यहाँ, इज है, योर तुम्हारा, गोल्ड कॉइन सोने का सिक्का, टेक इट ले लो इसे, इट इज़ यह है, राइटफुली हक से, योर्स तुम्हारा. सो
वो कादी कहता है ऑयल मर्चेंट से कि ये सोने का सिक्का ले लो, ये हक से तुम्हारा है। देन ही टर्न टू द पॉटर। नाउ ही टर्न टू द पॉटर। देन तब ही टर्न वह घूमता है टू द पॉटर उस सामान ढोने वाले की तरफ। तो नेक्स्ट, यू हैव ट्राइड टू कीप what did not belong to you, he said in a stern voice. Now the Qadi is very much serious and he is saying, you have tried to keep a thing that isn't your and doesn't belong to you, he said in a stern voice, very much serious voice. You, तुम have tried, कोशिश की, to keep, रखने की, what, जो did not belong, तुमसे संबंधित नहीं है, to you, he said, उसने कहा, in a stern voice. stern voice का मतलब गंभीर आवाज़। तो कादी गंभीर स्वर में कहता है कि तुमने कोई ऐसी चीज़ रखने की कोशिश की जो तुम्हारी नहीं है या उसका तुमसे कोई संबंध नहीं है। Soldiers, he called, take this man away from the courtroom and see that he offers his services free of charge to the oil merchant for a month. So here he calls the soldier and order them to take this man away from the courtroom and to look after that he provides the services to the oil merchant free of charge for a month. Soldiers, सैनिकों, he called, उसने बुलाया, take this man, ले जाओ इस आदमी को, away, दूर, फ्रॉम द कोर्ट रूम, इस अदालत से, एंड और सी दैट, देखना, ही ऑफर्स, वो प्रदान करे, हिज सर्विसेज, अपनी सेवाएं, फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज का मतलब होता है निःशुल्क, टू द ऑयल मर्चेंट, तेल के व्यापारी को, फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए। सो यहाँ पर कादी सैनिकों को बुलाता है, सिपाहियों को बुलाता है और उन्हें आदेश देता है कि इस आदमी को यहाँ से कोर्ट रूम से दूर ले जाओ, अदालत से दूर ले जाओ और देखना कि ये अपनी सेवाएं प्रदान करे तेल के व्यापारी को बिना किसी शुल्क के, निःशुल्क, बिना किसी पैसे के या बिना किसी शुल्क के, एक महीने के लिए। नेक्स्ट, द कादी कॉल्ड द राइटर एंड द टेलर बिफोर हिम। दिस बुक ऑफ लर्निंग बिलोंग्स टू the writer, he said. Now Qadi called the next two men of the previous day. Next, अगला the Qadi. Qadi called, बुलाता है, the writer, लेखक को, and और the tailor, दर्जी को, before him, उसके सामने। This, यह book of learning, बुक ऑफ लर्निंग किताब का नाम है, बिलोंग्स, संबंधित है, टू द राइटर, लेखक से, ही सेड, उसने कहा, आई नाउ रिटर्न इट टू हिम, आई, मैं, नाउ, अब, रिटर्न, लौटाता हूँ, इट, इसे, टू हिम, उसे। सो यहाँ पर कादी बुलाता है लेखक और दर्जी को और कहता है कि ये जो बुक ऑफ लर्निंग है ये लेखक से संबंधित है और मैं इसे लौटाने के लिए कहता हूँ। बट योर ऑनर, आई स्वेयर दैट इट इज़ माइन, प्रोटेस्टेड द टेलर। सो हियर द टेलर इज प्रोटेस्टिंग दैट द बुक इज हिज। बट, लेकिन, योर ऑनर, हुजूर, आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, दैट इट इज़ माइन, ये मेरी किताब है, प्रोटेस्टेड, विरोध करता है द टेलर। तो टेलर जो कादी ने निर्णय किया उसका विरोध करते हुए कहता है कि हुजूर, ये किताब मेरी है और मैं कसम खाता हूँ। सोल्जर, टेक दिस फॉल्स स्वेरिंग टेलर एंड इंश्योर दैट ही पेज द राइटर 5 gold coins for the trouble he has caused him, ordered the Qadi. Now Qadi called the soldiers and ordered them to take this false man and ensure that
he gives 5 gold coins to the writer for the trouble he has caused to him. Soldier, सैनिकों, टेक दिस फॉल्स स्वेयरिंग, ये झूठी कसम खाने वाले को, झूठे इंसान को ले जाओ. टेलर, एंड और इंश्योर, सुनिश्चित करना, दैट के ही पेज, वह अदा करे, द राइटर, लेखक को, 5 गोल्ड कॉइन्स, 5 सोने के सिक्के, फॉर द ट्रबल, जो परेशानी, ही हैज़ कॉज्ड हिम, उसे जो उसने परेशान किया है, ट्रबल पहुंचाया है. ऑर्डर्ड द कादी, कादी आदेश देता है. तो कादी आदेश देता है अपने सैनिकों को कि इस झूठे इंसान को यहाँ से ले जाओ और ये सुनिश्चित करना कि ये 5 सोने के सिक्के उस लेखक को अदा करे, क्योंकि उसने उसे जो परेशान किया, उसे जो परेशानी में डाला, ट्रबल में डाला. सो फाइनली द कलीफ एंड द ओल्ड मैन वर कॉल्ड. नाउ the case of the caliph and the old man is in court. Finally, the caliph and the old man were called before the qadi. आखिरकार, फाइनली, आखिरकार, द खलीफ एंड और द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, वर थे, कॉल्ड, बुलाए गए, बिफोर द कादी, कादी के सामने. The Qadi addressed the old man, "Why have you repaid the generosity of a stranger with ingratitude?" So here Qadi is asking the old man that why have you paid the generosity of a stranger with ingratitude? The Qadi addressed, कहता है the old man को, why, क्यों, हैव यू, तुमने, रीपेड, लौटाया, द जेनरोसिटी यानी उदारता, ऑफ अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी की, विथ इनग्रैटिट्यूड का मतलब कृतघ्नता, यानी कृतघ्नता का मतलब जब कोई इंसान आपको हेल्प करता है, आपकी मदद करता है और आप उसे सही से बर्ताव ना करें और उसे चोट पहुंचाएं, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो. यानी जब कोई आप पर एहसान करता है और आप उसे उस एहसान का बदला ऐसे चुकाते हैं तो उसे इनग्रैटिट्यूड कहा जाता है. गलत तरीके से चुकाते हैं तो उसे इनग्रैटिट्यूड कहा जाता है. तो कादी यहाँ कहते हैं, उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि तुमने एक अजनबी जिसने तुम पर उदारता की, दया दिखाई, उसका बदला ऐसे कैसे चुकाया, इनग्रैटिट्यूड से, कृतज्ञता से कैसे चुकाया. I will make sure you mend your cunning ways. So he is saying that I will make sure that you mend your cunning ways. I will, मैं, make, बनाऊंगा, sure, निश्चित, you, तुम्हें, mend, सही करना, your, तुम्हारी, cunning ways, चालाकियाँ, cunning ways यानी चालाकियाँ. तो यहाँ पर कादी कहता है कि मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि तुम सुधर जाओ और अपनी चालाकियाँ बंद कर दो. फ्रॉम दिस डे ऑन यू विल बी एम्प्लॉयड एट द कोर्ट एंड इट विल बी योर ड्यूटी टू एक्सटेंड courtesy to all travelers who come to Basra. Now here he is saying that from today onwards you will be employed at the court and you have to extend your courtesy to all the travelers who come to Basra. From this day, इस दिन से, you will, तुम, be employed, यहाँ पर लग चुके हो, at the कोर्ट में, and और it will be your duty, ये तुम्हारा कर्तव्य है, to extend यानी विस्तार करना, सौजन्य से, to all travelers who come to Basra, यानी जो भी यात्री बसरा में आएंगे उनका ध्यान रखना, उनका आवभगत करना तुम्हारा कर्तव्य रहेगा. तो वहाँ पर उसे जॉब मिल जाती है, उसे काम पर रख लिया जाता है, एम्प्लॉय कर लिया जाता है. Okay student, so turn the page to page number 46. Now what is the Qadi says? Good traveler, he said, turning to the Caliph. Now good traveler, अच्छे यात्री, he said, उसने कहा, turning to the Caliph, Caliph की तरफ मुड़ते हुए.
I know that the horse belongs to you. He says that he knows that the horse belongs to him. I know, मैं जानता हूँ, that the horse, कि ये घोड़ा, belongs, संबंधित है, to you, तुमसे. Take it and continue on your way. So he is saying that you can take it and continue to travel. Take it, ले जाओ इसे, and continue, और जारी रखो, on your way, तुम्हारी राह पर, तुम्हारे सफ़र पर तुम चल पड़ो. May your kindness and generosity be better rewarded in the future. He is saying that maybe your kindness and generosity be better rewarded in the future. May your kindness, तुम्हारी उदारता और दयालुता, काइंडनेस यानी दयालुता, जेनरोसिटी यानी उदारता, बी बेटर रिवॉर्डेड, पुरस्कृत की जाए अच्छे से, इन द फ्यूचर, भविष्य में. तो कादी कहता है कि तुम्हारा जो नेक दिल है, तुम जो जितने उदार हो, दयालु हो, वो भविष्य में तुम्हें और भी पुरस्कृत हो, ठीक है, उसका तुम्हें अच्छा फल मिले. The Caliph was amazed at the justice given by the Qadi. Now, Caliph was very much amazed. Amazed यानी surprised, चौंक गया. The Caliph was amazed. Caliph amazed था at the justice, जो न्याय किया, given by the Qadi, Qadi ने. He thanked him. उसने उसका शुक्रिया किया. Stepped to the back of the room and waited. Stepped to the back of the room. Stepped यानी कदम रखा, टू द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे वाले हिस्से में, एंड वेटेड, और इंतज़ार किया, अनटिल एवरीवन, जब तक हर एक, एक्सेप्ट द कादी, कादी के सिवाय, हैड लेफ्ट द कोर्ट रूम, छोड़ चुके हों वो अदालत. तो खलीफ उस कमरे में जाता है और उसका इंतज़ार करता है जब तक बाकी सब लोग उस कोर्ट रूम से, उस अदालत से बाहर नहीं चले जाएं. देन ही अप्रोच्ड हिम एंड सेड, Honored judge, I am in awe of your wisdom. So here he says that, honored judge, I am in awe of your justice. Then तब he approached, वह पहुंचा, him, उसके पास, and said, और कहा, honored judge, हुजूर, I am in awe. I am in awe का मतलब होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ, बहुत ही ज़्यादा चौंका हुआ हूँ, of your wisdom, आपके न्याय से. How did you give such accurate and just judgments without evidence and witnesses? So he is asking how you can make such accurate judgments without any evidence or witnesses. How, कैसे, did you, आप, give, दे सकते हैं, such, सही, accurate, सटीक, and, और सही, just का मतलब होता है सही, judgments, फैसले, विदाउट, बिना, एविडेंस के, सबूत, एंड, और विटनेसेस, गवाहों के. सो यहाँ पर खलीफ उनसे पूछता है कि आप कैसे इतना सही और सटीक फैसला सुना सकते हैं बिना किसी सबूत और गवाह के. These cases have all been very simple, said the Qadi, smiling. Now the Qadi is replying to him that these all cases were very much simple. These cases, ये सारे cases have all been very simple, बहुत ही simple थे, बहुत ही सरल थे. said the Qadi, कहता है कादी, smiling, मुस्कुराते हुए. तो कादी मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सारे cases काफ़ी simple थे, very simple. Did you not hear the oil merchant say that he had carried that piece of gold for many years? So he is asking the Caliph that, did you not hear that about the oil merchant that he had carried the gold coin for many years? Did you, क्या, not, नहीं, सुना, hear का मतलब सुना, क्या तुमने नहीं सुना, the oil merchant, तेल के व्यापारी को, से, कहते हुए, किए, he had carried, उसने संभाल कर रखा, दैट, वह, पीस ऑफ गोल्ड, सोने का टुकड़ा, फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक. सो वो खलीफ से कादी पूछता है कि क्या तुमने नहीं सुना
जब तेल का व्यापारी ये कहता है कि उसने उस सिक्के को हमेशा अपने पास रखा बहुत सालों तक, आई पुट द कॉइन इनटू अ ग्लास of clear water. So he is saying that I put the coin into a glass of clear water. I put मैंने रखा the coin सिक्का into a glass एक ग्लास में, एक कांच के ग्लास में of clear water जो कि साफ पानी से भरा हुआ था। तो यहाँ पर कादी कहता है कि मैंने उस सिक्के को एक साफ पानी के ग्लास में रखा। Tiny drops of oil came up to the surface. So here is adding that tiny droplets of oil came up to the surface. Tiny drops छोटी बूंदे of oil तेल की came up ऊपर आई to the surface सतह पर। So यहाँ पर कादी कहता है कि जब मैंने उस सिक्के को उस पानी में डाला तो तेल की कुछ छोटी छोटी बूंदें ऊपर उठकर आ गई सतह पर। That proved to me beyond doubt that the coin belonged to the oil merchant. So here the Qadi is saying that this was what it proved that the coin belonged to the oil merchant. That proved इसने साबित किया to me मुझे beyond doubt संदेह से परे that के the coin सिक्का belonged संबंधित था to the oil merchant उस तेल के व्यापारी से। तो यहाँ पर वो कहता है कि उस सिक्के का संबंध तेल के व्यापारी से था, ये मुझे पता चल गया और इस बात पर मुझे कोई संदेह नहीं रहा। That is very clever indeed, said the Caliph. So Caliph said that it is very much clever indeed. That ये तो is है very बहुत clever शातिर indeed वास्तव में clever यानी शार्प। said the Caliph कहता है खलीफ, but do tell me how you knew that the book of learning belonged to the writer. So here he is asking that how did the Qadi knew that the book of Caliph, book of learning belonged to the writer. But लेकिन do tell बताओ me मुझे how you knew आपको कैसे पता that the book कि वो किताब ऑफ लर्निंग की बुक ऑफ लर्निंग बिलोंग संबंधित थी टू द राइटर से उस बुक का संबंध था, आपको ये कैसे पता चला। तो खलीफ कहता है कि लेकिन आप ये मुझे बताइए कि उस बुक का संबंध राइटर से था, ये आपको कैसे पता चला। दैट केस वॉज ऑल्सो क्वाइट ईजी टू सेटल रिप्लाइड द कादी। नाउ द कादी रिप्लाइड दैट इवन दैट केस वॉज वेरी मच सिंपल टू सेटल डाउन। दैट केस वह केस वॉज था ऑल्सो भी क्वाइट बहुत ईजी आसान टू सेटल निपटाने के लिए। रिप्लाइड आंसर किया उत्तर दिया द कादी ने। तो यहाँ पर कादी उत्तर देता है कि वह केस भी बहुत आसान था निपटाने के लिए। ऑन लुकिंग क्लोजली एट द बुक आई फाउंड दैट द पेजेस मोस्ट यूज्ड were those on which the duties of writers and scholars were written. So here he says that on looking closely to the book, he found that the pages most used were those on which the duties of writers and scholars were mentioned. On looking closely, on looking देखने पर, closely पास से, at the book, book को किताब को, I found मुझे मिला, that के found यानी पाया या मिला, द पेजेस जो उसके पेजेस थे, मोस्ट यूज ज़्यादातर यूज्ड, वर दोज वो थे, ऑन विच जिस पर, द ड्यूटीज़ यानी कर्तव्य, ऑफ राइटर्स लेखक, एंड स्कॉलर्स और विद्वानों के, वर रिटन लिखे हुए थे। सो कादी कहता है कि गौर से उस किताब को देखने पर मैंने ये पाया कि जो पेजेस सबसे ज़्यादा यूज़ हुए थे वो कौन से थे, जिन पर कर्तव्य लिखे हुए थे लेखकों के और विद्वानों के। द बुक बिलोंग टू द राइटर। सो हियर ही एड्स दैट द बुक बिलोंग्ड टू द राइटर। द बुक किताब, बिलोंग्ड टू द राइटर उस लेखक से संबंधित थी। योर जजमेंट इज मोस्ट वाइज। नाउ द कलीफ इज एक्सप्लेनिंग समथिंग। Exclaimed the Caliph in admiration. Your judgment,
आपका फैसला इज़ मोस्ट वाइज, सबसे ज़्यादा सही है। एक्सक्लेम्ड द खलीफ, खलीफ कहता है इन एडमिरेशन, एडमिरेशन यानी प्रशंसा में, यानी उनकी तारीफ करते हुए वो कहता है कि आपका निर्णय, आपका फैसला सही था, बहुत ज़्यादा सही था। फुल स्टॉप। बट हाउ कुड यू टेल दैट द हॉर्स वॉज राइटफुली माइन? सो नाउ ही इज आस्किंग अबाउट हिमसेल्फ, हिज एंड द ओल्ड मैन केस। बट हाउ, लेकिन कैसे, कुड यू, आप, टेल, कह सकते हैं, दैट, के, द हॉर्स, घोड़ा, वॉज, था, राइटफुली, हक से, माइन, मेरा। सो वो पूछता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो घोड़ा मेरा था। लास्ट नाइट आई हैड योर हॉर्स पुट इन माई स्टेबल। सो हियर द कादी सेज दैट लास्ट नाइट आई होल्ड योर हॉर्स इन माई स्टेबल। लास्ट नाइट, गई रात, आई हैड योर हॉर्स, तुम्हारे पास मेरा घोड़ा था, पुट इन माई स्टेबल, जो कि मेरे अस्तबल में रखा हुआ था। both you and the old man would have to pass the stable on your way to court. So here is explaining that both you, तुम दोनों, both you and the old man, दोनों, तुम और वो बूढ़ा आदमी, would have to pass, गुजरते, the stable, उस अस्तबल से, on your way to court, कोर्ट आते वक्त उस अस्तबल से दोनों को गुजरना था। This morning I opened the stable door and stood behind a bale of hay. So he is saying that this morning, इस सुबह, I opened the stable door, उस अस्तबल का दरवाज़ा खोल दिया मैंने, and stood, और stood behind, और खड़ा हो गया पीछे, a bale of hay, एक चारे के ढेर के पीछे, बेल यानी ढेर, hay यानी चारा। When the old man passed, the horse never looked up. So he is saying that when the old man passed from there, the horse never looked up. When, जब, the old man, बूढ़ा आदमी, passed, गुजरा, the horse, घोड़ा, never looked up, ऊपर नहीं देखा, घोड़े ने, जब वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजरा तब घोड़े ने ऊपर नहीं देखा। But, लेकिन, when you passed the open door, the horse stretched out its head and neat as horses do only when a loved one approaches. So here he is saying that when the old man passed, the horse never looked up. जब वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजरा तब उसने ऊपर, घोड़े ने नहीं देखा। But लेकिन when you passed, जब तुम गुजरे, the open door, खुले दरवाजे से, the horse stretched out, हॉर्स ने अंगड़ाई ली, घोड़े ने अंगड़ाई ली, स्ट्रेच्ड आउट इट्स हेड, अपने सर को ऊपर किया, स्ट्रेच करते हुए, अंगड़ाई लेते हुए, एंड, और, नीड, हिनहिनाया, एज हॉर्सेस डू, जो घोड़े करते हैं, ओनली, केवल, व्हेन, जब, अ लव्ड वन, कोई प्रिय, मास्टर, मालिक, अप्रोचेस, पहुंचता है। सो यहाँ वो कहता है कादी, लेकिन जब तुम गुजरे तब वो घोड़ा अपना सर ऊपर करता है और हिनहिनाता है, और ये घोड़े तभी करते हैं जब कोई प्यार करने वाला मालिक पास पहुँचे। सो यू सी माई फ्रेंड, द मास्टर वॉज वेरी सिंपल, द मैटर वॉज वेरी सिंपल आफ्टर ऑल। सो हियर ही सेइंग दैट योर मैटर वॉज वेरी मच सिंपल टू सेटल डाउन। सो, तो, यू सी, तुम देखो, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, द मैटर, किस्सा, वॉज, था, वेरी सिंपल, बहुत आसान, आफ्टर ऑल, बावजूद इसके। सो कादी कहता है कि ये मैटर तो काफ़ी आसान था। नाउ व्हाट इज द कलीफ सेज, लेट अस लिसन। योर विजडम इज इंडीड बियॉन्ड कंपेयर, कादी सेड द कलीफ। सो कलीफ इज सेइंग दैट योर विजडम इज इंडीड बियॉन्ड कंपैरिजन टू एनीवन। योर विजडम, तुम्हारा न्याय, इज इंडीड, तुम्हारा न्याय वास्तव में, बियॉन्ड कंपेयर, बियॉन्ड कंपेयर का मतलब है यहाँ पे तुलना से परे है, तुम्हारा न्याय तुलना से परे है, कादी
सेड द खलीफ, खलीफ कहता है। तो यहाँ पर खलीफ कहता है कि तुम्हारा जो न्याय है वो किसी से भी तुलना उसकी नहीं की जा सकती, वो तुलना से परे है, बियॉन्ड कंपैरिजन है। देन रिवीलिंग हिज ट्रू आइडेंटिटी ही सेड आई एम खलीफ हारून अल रशीद। सो then he revealed his true identity and said that I am Khalif Harun al-Rashid. Then तब reveal बताते हुए his true identity अपनी सही पहचान he said उसने कहा I am मैं हूँ खलीफ हारून अल रशीद, मैं हूँ खलीफ हारून अल रशीद। Honest judge, I now make you the grand Qadi of all Baghdad. So he says that now I will make you the grand Qadi of all Baghdad as you are the honest judge. Honest judge, ईमानदार न्यायाधीश। I now, मैं अब make you, बनाता हूँ तुम्हें the grand Qadi, बड़ा कादी of all Baghdad, सारे बगदाद का बड़ा कादी तुम्हें बनाता हूँ, तुम्हें नियुक्त करता हूँ। So students, this is what our chapter was about. So never do any act of ingratitude towards someone who is showing help or kindness to you. Students, इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा लोगों के साथ उदार रहना चाहिए और कभी भी किसी के एहसान का इस तरह से बदला नहीं चुकाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस मूव टू द होमवर्क पार्ट। ओके, Class 6, Subject English, Chapter 3, Lecture number 3. Students, there are some hard words from today's lecture that are written over here. First one is arrived, ARRIVED, arrived यानी पहुँचा। Second is rightfully, RIGHTFULLY, rightfully. Third is rightfully का मतलब हक से। थर्ड इज प्रोटेस्टेड, PROTESTED, प्रोटेस्टेड का मतलब विरोध करना। फोर्थ एंश्योर, ENSURE, एंश्योर यानी सुनिश्चित करना। फिफ्थ GENEROSITY, जेनरोसिटी मीन्स उदारता, काइंडनेस। सिक्स्थ इज विजडम, WISDOM, विजडम का मतलब न्याय। Okay students, so you have to learn and write these hard words in your notebook in neat and clean handwriting. Send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है। स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।